Hello everyone, welcome to the Recovery Room, जहाँ हम सीखते हैं medical concept with simplified explanations. In today's video, we'll be discussing about electrocardiography, commonly known as ECG. Coming to the etymology is the breakdown of where the words are originated. ये word का origin कहाँ पे हुआ है? Origin of the word comes from Greek word का origin है. It consists of three words: electro, cardio and graphy. Electro meaning related to electricity, cardio meaning it's related to heart, and graph meaning जिसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वी रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट. सो दिस इज व्हाट वी सी इन अ ईसीजी. अब ईसीजी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? वी डू द ईसीजी रिकॉर्डिंग थ्रू अ मशीन, एंड दिस इज अ मेडिकल टेक्निक जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन अ पैसेज ऑफ टाइम उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. इट इज अ ट्रांसथोरेसिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब we observe the activity of the heart through the chest wall. So that is our transthoracic interpretation. और ये कैसे होता है transthoracic interpretation? We place electrodes on the chest and various parts of our body, जिसके थ्रू हम transthoracic activity of the heart को graphically capture कर सकते हैं. And this is obviously non-invasive, मतलब इसमें क्या होता है? We do not apply anything into the body. तो नॉन इन्वेसिवली हमको हार्ट के फंक्शंस मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग. कोई डिफरेंसेस या एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं हार्ट रिदम में, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का कोई चेंजेस है कि नहीं, तो ये सब हम सारा चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं. नाउ हियर वी कैन सी द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट. यहाँ पे हार्ट के एनाटॉमी का एक पिक्चर दिया हुआ है. दिस इज अ 2D पिक्चर, बट अ हार्ट इज अ 3D स्ट्रक्चर. So firstly, talking about our heart has two sides, that is the right side and the left side. The right side deals with all the deoxygenated blood, left side में सारा oxygenated blood का काम होता है. Now there are different structures as we can see. The heart has four chambers: the right atrium, the left atrium, the right ventricle and the left ventricle. तो upper the chambers को बोलते हैं atrium and the lower the chambers को बोलते हैं ventricles. Now this is the superior vena cava and this is the inferior vena cava. तो इस superior vena cava से blood जो deoxygenated blood है from the chest, the trunk, the upper limb, the head and neck, यहाँ से superior vena cava के through ये ब्लड आता है टू द राइट एट्रियम. में लोअर लिम्स का जो ब्लड है इट कम्स थ्रू द इंफीरियर वेना कवा टू द राइट एट्रियम. कोई वाल्व नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो वाल्व हियर प्रेजेंट. फिर उसके बाद राइट एट्रियम के थ्रू ब्लड जो है इट पासेस टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस वाल्व दैट इज कॉल्ड आवर ट्राइकस्पिड वाल्व. यहाँ पे दो कस्प हमको दिख रहा है एंड देयर इज अनदर कस्प प्रेजेंट, but it is not shown here because this picture is a 2D picture but our heart is a 3D organ. So tricuspid meaning three cusp. Now from the right ventricle it goes to the pulmonary artery. So this is the one and only artery that carries deoxygenated blood. We usually know कि arteries carries oxygenated blood, but ये अकेला artery है जो कि deoxygenated blood carry करता है to the lungs, to the right left lung and ये वाला to the right lung. तो ये carry कर रहा है ताकि ये deoxygenated blood lung जो है फिर से reoxygenate करके pulmonary veins के through वापस हार्ट को दे पाए. तो अभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लंग्स में रीऑक्सीनेट होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है इट कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम. फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू दिस वाल्व कॉल्ड द माइट्रल वाल्व. नो, माइट्रल वाल्व इज अ बाइकस्पिड वाल्व. दो कस्प होता है इसलिए हेंस द नेम. सो यू कैन सी हियर वन कस्प, टू कस्प. देन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज टू द एओर्टा, largest artery of the body. Ascending aorta and descending aorta. This is the descending. So ascending aorta upper part of the body, that is head, neck, ट्रंक एंड द अपर लिम्स को सप्लाई करता है. डिसेंडिंग एओर्टा इट सप्लाइज टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये सारा ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो जाता है अपर लिम्स को एंड लोअर लिम्स को. यहाँ पे भी एक वाल्व है दैट इज कॉल्ड द एओर्टिक वाल्व. बट यू सी देयर इज नो वाल्व हियर वेयर द सुपीरियर एंड inferior vena cava enters the right atrium. And what is the function of these valves? These four valves, there are four valves of the heart. These four valves prevent the blood from back flowing. Unidirectional flow, एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में जो है ब्लड फ्लो कर सकता है. वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये कस्प होते हैं वाल्व्स के. देयर आर कंडीशन इन विच देयर इज माल फंक्शनिंग ऑफ दिस वाल्व्स, बट इन नॉर्मल केसेस द ब्लड शुड नॉट बैक फ्लो थ्रू दिस वाल्व्स. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल. तो हार्ट के कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू वो अपना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाता है. इट शोज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दैट इज द पंपिंग एक्शन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट? कि दैट इट पंप्स ब्लड. तो ये पंपिंग एक्शन दिखाने के लिए इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है जिस पे रिलाई करके ये अपना काम करता है. तो वी लर्न अबाउट दिस.
here. First is the atomicity, then is the excitability, conductivity and contractility. Atomicity. Atomicity क्या है? It is the ability of the cardiac cells. एक साइनोएट्रियल नोड है. It has special cells called the pacemaker cells जो कि जनरेट करता है स्पॉन्टेनियस खुद से ऑटोमेटिक इम्पल्सेस जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑटोमेसिटी. देन वी हैव एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी मीन्स जो मायोकार्डियल सेल्स है, मायोकार्डियल मतलब हार्ट के सेल्स, द मेन हार्ट के जो सेल्स है, इट रेस्पॉन्ड्स टू अ स्टिमुलस. अगर कोई स्टिमुलस हम प्रोवाइड करते हैं, इट बिकम्स एक्साइटेड एंड शोज एन एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो रिलैक्स करेगा. तो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस, इट गेट्स एक्साइटेड whenever we provide a stimulus. That is called the excitability. Then we have conductivity. Conductivity means ability of the cardiac cells, same myocardial cells, कि वो कंडक्ट कर पाए, ट्रांसमिट कर पाए जो भी इम्पल्स इसने जनरेट किया है एक सेल से दूसरा सेल तक कंडक्ट कर पाए. दैट इज कॉल्ड योर कंडक्टिविटी. यही कंडक्टिविटी का प्रिंसिपल यूज करके जो है, जो इम्पल्सेस जो है वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हार्ट, मतलब साइनोएट्रियल नोड से आएगा एवी नोड में, एवी नोड से वापस नीचे आएगा थ्रू we have a conduction system through which it goes. So this explains how the impulses gets travel to the entire muscles of the heart. Next, the last property is contractility. Contractility is the ability of the myocardial cells or the muscles to contract, कि वो contract हो सकते हैं and it can pump the blood. तो pumping action तभी होगा जब इसके muscles, heart के muscles contract करेंगे. So that is your property of contractility. अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट विल कंट्रैक्ट. दैट इज योर कंट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम. जो कंडक्शन करता है हार्ट के सेल्स, द मायोकार्डियल सेल्स. हाउ इज द कंडक्शन सिस्टम वर्क्स? सो यू कैन सी दिस इज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. दैट इज वी हैव हियर द साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, देन ये आता है बंडल ऑफ हिस में, देन वी हैव ए बंडल ब्रांचेस, फिर ये वापस जाता है ऊपर की तरफ साइड से वेंट्रिकल्स के थ्रू होते हुए. That is your Purkinje fibers. So this is the sequence it follows. यहाँ पे generate होता है impulse, आता है AV node में, spread होता है again to the Bachmann bundles, bundle of His, again bundle branches से होते हुए Purkinje fibers. यहाँ पे you can see how is the conduction system working. So now we'll discuss thoroughly about each of the part that helps in conduction. So यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, the first thing that helps in conduction is the sinoatrial node. तो sinoatrial node, where is it, what is it, what does it do, ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. सिमिलरली विद एवी नोड एंड अदर व्हाटएवर पार्ट्स आर देयर दैट हेल्प्स इन कंडक्शन. सो एसए नोड इज द प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट, जिसमें पेसमेकर सेल्स है और वो जनरेट करता है इंपल्सेस. ओके, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस इंपल्सेस जनरेट करता है. सो इट इज अ वेरी पिकुलियर स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट सेल्स. दिस इज द एसए नोड. ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस 60 to 100 बीट्स पर मिनट इन अ नॉर्मल हार्ट रिदम. अभी बट इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स से ये इन्फ्लुएंस हो जाता है, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. तो सिंपैथेटिक सिस्टम से क्या होता है, इट इज द सब कुछ बढ़ा देता है, इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर एंड ऑल ऑफ दैट. सो द हार्ट रेट कैन इंक्रीज विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम. फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम. Whereas coming to the parasympathetic system, we can see, so the parasympathetic system is more of the rest and digest. So heart rhythm rate को slow कर देता है with the influence of the parasympathetic system. Then coming to the next thing, that is ये impulse generate करके कहाँ भेजेगा, कहाँ. तो through the internodal pathways it sends. Internodal pathways we have seen in the last part कि internodal pathways के through it through the left atrium it causes the atrial depolarization and contraction. तो atrial depolarization meaning कि contraction का जो starting है that will occur. So internodal pathways है, internodal pathways के through ये send करेगा अपना impulses जो इसने खुद से generate किया है to the AV node. और ये जो है EKG या फिर ECG का जो ग्राफ है उसमें हमको एक P वेव के थ्रू इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जब SA नोड डीपोलराइजेशन मतलब कंट्रैक्शन का स्टार्ट करता है. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द SA नोड. नाउ कमिंग टू द AV नोड और कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. नेम सजेस्ट कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ये नोड कहीं प्रेजेंट है. तो इट इज द गेट कीपर. इसको गेट कीपर बोलते हैं क्योंकि ये बेस ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है. नाम से पता चल रहा है एट्रियम और वेंट्रिकल का बीच में है, राइट साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड का एट्रियम का बेस में प्रेजेंट होता है ये. और ये क्या करता है, इट स्लोज डाउन द कंडक्शन. जो भी ऐसे नोड ने जिस भी रेट से इंपल्स जनरेट किया है दैट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट, उसको यहाँ पे आके एवी नोड जो है वो उसको स्लो डाउन कर देता है. अराउंड 40 to 60 बीट्स पर मिनट तक स्लो डाउन कर देता है. सी, सो दिस इज मेनली फंक्शन ऑफ द एवी नोड. तो डिले हो जाता है. तो ये डिले जो है वो रिप्रेजेंट करता है PR सेगमेंट को इन अ ECG स्ट्रिप.
So the next thing we can see here is the bundle of His, also called the atrioventricular bundle. और फिर जो है इम्पल्स आ जाता है हमारा ट्रेवल होके राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में. अभी है कहाँ ये बंडल ऑफ हिस? बंडल ऑफ हिस है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज द नेम सजेस्ट, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो मस्कुलर वॉल है दैट इज कॉल्ड द सेप्टम. तो दैट इज उसमें है, उसमें ही लोकेटेड है हमारा बंडल ऑफ हिस. एंड व्हाट डज इट डू? ये क्या करता है? इट ट्रांसमिट्स द इम्पल्सेस. अभी देखो साइनोएट्रियल नोड में इम्पल्स जनरेट हुआ, वो आया एवी नोड में, वहाँ पे कुछ डिले होके now it gets transmitted to the ventricles. Okay, तो bundle of His क्या है? It transmits the impulses from the AV node to the ventricle. और ये क्या करता है? उसका potentials कितना होता है? Spontaneous action potential at 40 to 60 beats per minute में ये generate करता है. अब now it divides into the right bundle branch and the left bundle branch. दोनों ventricles को depolarize, दोनों ventricles को contract करने के लिए. तो that is left side और right side में branching हो जाता है bundle of His का. That is called your right bundle branch and left bundle branch. Now as I told, अगेन यहाँ पे एक डिले होता है, दैट इज 20 to 40 बीट्स पर मिनट का एक डिले हो जाता है. नाउ देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट वेयर द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स टू इज द Purkinje फाइबर्स. Purkinje फाइबर्स आर द टर्मिनल ब्रांचेस जो कि वेंट्रिकल के सारे जो मसल्स है, मायोकार्डियम सेल्स है, जो मायोकार्डियम लेयर है, वो सारों को डिपोलराइज करेगा और कंट्रैक्ट करेगा. एंटायरली स्प्रेड होगा. हार्ट इज अ स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, तो पीछे तरफ भी एंड एंटायर वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करेगा थ्रू द Purkinje फाइबर्स. तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है एंटायर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जो है वो रिप्रेजेंट होता है ECG स्ट्रिप में थ्रू द QRS कॉम्प्लेक्स. तो दैट इज योर Purkinje फाइबर्स. एंड ये भी हमारा जो है इम्पल्सेस का रेट क्या होता है यहाँ पे भी 20 to 40 बीट्स पर मिनट.